Hello dear students, today in this video we are going to learn how to change imperative sentence direct speech into indirect speech. We have already learned about how to change assertive and imperative sentence reported speech. In this video we are going to learn how to change imperative sentence reported speech. First of all, I want to clear that what are imperative sentences. Imperative sentences are like to give someone or somebody order, command, request, suggestion, and sometimes he asks or she asks from somebody, and he sometimes gives some offer, suggestions, request, and maybe some proposal given by the person. And if we give something, how to identify imperative sentences in inverted commas. First of all, the sentence having no subject. If there is no given subject, it means that if you is hidden in the sentence, it means it is imperative sentence. It is basic to identify imperative sentence than other type of sentences. Let's begin. Here we have imperative sentence type narrations. So first of all, I want to tell you what are imperative sentences. Here I give you examples. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी सेंटेंस टाइप जब होता है, सो यू इज ऑलवेज हिडन, यू एज ए सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन, राइट, ऑलवेज हिडन. So we never use you as a subject in a sentence. That's why this is imperative sentence. Then sit down. This is imperative sentence. You is hidden in this sentence. You shut down. So it's kind of advice. It is kind of order that given by a person. Here we have please keep quiet. In this sentence, it is kind of request by person to other one to keep quiet. It means that it is a suggestion, but who keep quiet? It is said by person to someone. You keep quiet. Now we have another one. Don't smoke. Don't smoke here. In this sentence, the same thing is happened, that is you is hidden and there is no given subject in the sentence. So they give direct given the verb and some word which give respectfully to the person. If give it some advice, they given pledge. So sit down, that's some time of words which is order to give someone. And don't smoke here, it is prohibited. Prohibited, and maybe the prevented someone, prevented someone for smoking, so it means that there is kind of sentence which gives command, request, order, suggestion, proposal, wish. These sentences are imperative sentences. I think you must understand these things. So these are the imperative sentences. So let's discuss further. Now I give example first. That's why you easily understandable that how I'm going to deal with these things. He said to me, please open the door for me. Please open the door for me. So here we have that is no given subject. He said to me, you open the door for me. It means that you is hidden somewhere in the sentence. So please open the door for me. So how to change
imperative sentence of direct speech to indirect speech, right? How to change? There are various rules how we can change direct to indirect of imperative sentences. Like other sentence type like assertive, interrogative, is something different in this sentence type. So basic or general rule remains same, but we have to change some different rule in this sentence type. तो आज हम इस different sentence type के rule को पढ़ेंगे. So said to is the first given in the reporting speech. How to change said to, said, says to, whatever is given in the reporting verb, and to identify the given sentence in the inverted commas. So let's see. If there is given please word, please is a suggestion, please given a request, that I use said to into requested. Let's see how to change. When in the sentence given, like the word like, words like, when we deal such words like request, order, suggestion, command, maybe threat, you can say threat, you can also say ask, you can say the word which is given wish. When let से वर्ड जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हम इसमें विश का यूज करेंगे. और प्रपोज, प्रपोजल, प्रपोज या प्रपोजल, प्रपोजल, एंड सो ऑन. ये हमारे रहेंगे. इस प्रकार के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, कमांड, थ्रेट, आस्क, विच, प्रपोजल एक्सेट्रास दिए जाते हैं. सो इनको चेंज करना है हमें. तो सबसे पहले अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस प्रकार के सेंटेंस टाइप दे रखे हैं जो कि बिना लेट के, विदाउट लेट के हैं, तब इसमें हम सेंटेंस में अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे. अगर यहाँ पर से है तो से का से रखेंगे. सैड आता है तो सैड को आप सैड भी रख सकते हो, या फिर इनके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो. रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर को ऑर्डर्ड, सजेशन को सजेस्टेड, कमांड को कमांडेड, थ्रेट को थ्रेटन्ड, आस्क को आस्क्ड, एंड सो ऑन. विश को विश्ड, एंड प्रपोज को प्रपोज्ड, थ्रेट को थ्रेटन्ड, threatened. So these word, when we change in past time of these words, so we definitely change like others said, requested, ordered, suggested, command, asked, threat, and these are. Without let, without let, right? First thing, when given negative sentence, in negative sentence like if I like that, don't smoke here, don't smoke here. सो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जगह हम दो तरीके के यूज़ कर सकते हैं. ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे. सो ऑर्डर्ड का जब यूज़ करेंगे तो नॉट टू लगेगा, नॉट टू लगेगा, नॉट टू स्मोक देयर, राइट. और इसकी जगह ही सेड वट एवर, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लगेगा. क्या लगेगा? ऑर्डर. बट जब हम इस वर्ड को ऑर्डर्ड को ना लिखें और कोई दूसरा वर्ड लिखें
तब उस सेड की जगह या सेट टू की जगह सेड या सेट टू की जगह फोर बेड का यूज़ करेंगे, राइट, या प्रिवेंटेड का यूज़ करेंगे, राइट। सो इनको भी याद रखेंगे, अब इनको भी नज़र रखेंगे। अभी मैं बता रहा था फिलहाल आपको कि हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी देर बाद इसको हम लिख देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, से और सेड, और सेज टू आ जाता है यहाँ पर, सेज टू। तो सेज टू को हम रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर्स एंड सजेस्ट्स, so on, commands, asks, threats, wishes, proposes, it's so many things to do. So one more thing मैं लिख देता हूँ, wishes, proposes, etc. अब डायरेक्ट से आता है, से, only say, then we use just like request, order, suggest, command, same, and wish, propose, etc. Right. So these sentences are without not and without let. बिना let वाले और without not वाले को यूज जब हम करेंगे तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और not वाले में भी हम ऑर्डर का या ऑर्डर का यूज़ करेंगे अगर हमें प्रिवेंटेड या फॉरबैड नहीं लिखना। अगर इन्हीं में ही हम बात करते हैं, अगर आपका नोट वाला यूज़ आ जाता है, दैट्स ऑल अबाउट थिंग में भी कुछ बच गया तो इसमें देख लेंगे। से का शेर हो गया, से का हमने से टू आ जाता तो कहा था, अब से, सेड, सेज टू, ओके। अगर हम इसमें नॉट वाले यूज़ करते हैं, इफ गिवन नॉट, अगर नॉट वाले अंदर आते हैं, डू नॉट वगैरह, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं जैसे कि डोंट वाले आते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सैड को फॉरबिड, राइट, और सैड टू को भी फॉरबिड में यूज कर देंगे, सैड टू को भी फॉरबिड में यूज कर देंगे। अगर आपको आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, से टू फॉरबिड, सेज टू फॉरबिड्स, और सेट टू को, सेट हो गया तो सेट को तो फॉरबिड में, और सेट टू, और सेट टू को फॉरबिड में, और सेज टू को फॉरबिड में। इसकी जगह आप प्रिवेंट का भी यूज कर सकते हो, प्रिवेंट और प्रिवेंट्स, राइट, एंड प्रिवेंटेड, यहां पर प्रिवेंटेड आ जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। So these are the reporting verb change, how to change reporting verb according to sentence type. Imperative sentence में भी 2-3 तरीके के मैंने बताया। सबसे पहले विदाउट नोट, डोंट वगैरह यूज़ नहीं करते, तो विदाउट नोट वाले में हम सिंपली ये वाले यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव आ जाता है सेंटेंस, डोंट स्मोक, डोंट वॉक स्लो, डोंट ओपन द डोर, है ना, डोंट स्टैंड अप, दी सेंटेंस में हम फॉरबिड का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑर्डर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉरबिड लगाएंगे तो फॉरबिड के बाद कभी भी, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू यूज फॉरबिड इन अ सेंटेंस, वी शुड अवॉइड नॉट। हमें क्या अवॉइड करना है, यूजिंग ऑफ नॉट, तो नॉट को यूज़ करना हमें अवॉइड करना है। सो कभी भी फॉरबिड आ जाए, रिमेंबर दिस लाइन, इफ आई वांट इरेज दिस,
अब हम देखेंगे कि जब कभी भी फॉर बेड वाला जो सेंटेंस आता है, अब रूल ही पढ़ रहे हैं हम, तो सेकंड रूल ही हम इसको लिख देते हैं। रूल नंबर 2, जब फर्स्ट रूल हमें बताया कि सेट टू को कैसे चेंज करें, सेकंड रूल आता है हाउ टू रिमूव कॉमा। तो रिमूव कॉमा करेंगे जब आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विदाउट लेट वाले सेंटेंस होते हैं, बिना लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, डोंट स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन, डोंट स्मोक हेयर। इसमें हम कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे, राइट। एंड अगर सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होता है इसके अंदर और कोमा लगा हुआ है, तो इस कोमे की जगह कंजक्शन जो यूज करेंगे वो दैट का यूज करेंगे, राइट। रिमेंबर दिस थिंग। तो आपको दैट का यूज करेंगे अगर लेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दैट कंजक्शन के रूप में। अगर आपका विदाउट लेट से स्टार्ट होता है जैसे मैंने ये वाले बताए हैं, तो इसमें कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे। तीसरा रूल इसमें बताएंगे इफ यू यूज फॉर बेड, इफ वी यूज फॉर बेड या फॉरबिड या forbids, we should avoid use of not if sentence given negative. If the sentence given नेगेटिव, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव दे रखा है सेंटेंस, तब हम उसमें नोट का यूज ना करें। अगर हमने सेज टू की जगह यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरबिड, फॉरबेड या फॉरबिड्स का यूज कर रखा है, तो नोट को अप्लाई ना करें। नोट को अप्लाई तभी करें जब आपने इनकी जगह ऑर्डर्ड का यूज किया है, तब हम नोट का यूज करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड लेटर वी आल्सो एबल टू नो दिस रूल्स आर वेरी इजी। हम पढ़ेंगे कि ये रूल तो बहुत आसान है, तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे और रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा रहेगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में जब हम जाएंगे, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमने ये भी चेंज कर लिया, हमने अब ये भी चेंज कर लिया। कभी भी विस्ट के बाद ऑलवेज यूज टू विद दिस वर्ड्स, सो ऑलवेज यूज टू आफ्टर these words in changing of reporting verb, यानी कि जब इसको चेंज करेंगे तब हमें टू भी इसमें साथ लगना है। जैसे अगर विश आ जाते, विश लिखते हैं हम इसमें, ही विश्ड, तो कोई भी विश लिखते हैं या विश्ड लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो टू मी का यूज करेंगे जरूर। जैसे यहाँ पर अगर से टू में आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है लेट अस प्ले क्रिकेट, सो इसने मुझे प्रपोज किया, खेलने के लिए प्रपोज किया, सो ही प्रपोज टू मी, तो प्रपोज मी की जगह प्रपोज टू मी करेंगे। और मैंने इसके लिए प्रपोज या प्रपोजेज और प्रपोज, तो उसके बाद टू का यूज करेंगे, यानी कि हम सिर्फ इसको बदलेंगे। फिर अगर अंदर कोई लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें कोई प्रपोज विश हैव ए कप ऑफ टी, तो विश किया उसने, या लेट मी, फॉर एग्जांपल लेट मी, ही सेड टू मी, ही लगाओ या सी लगाओ, चलो, सी सेड टू मी लेट मी बाय दिस ड्रेस,
लेट मी बाय दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस लेने दो। तो इसकी इच्छा थी, इसकी इच्छा है, इसने मुझे अपनी इच्छा दिखाई। सो सी सेड टू को बदलेंगे, शी विश टू मी, शी विश टू मी। अब लेट को यूज करते हुए हमने कहा इसको शुड में बदल देंगे। लेट को किस में बदल देंगे? शुड में, वो आगे बताऊंगा। इसको बदल दें इसमें आई माई मी, तो हर का यूज नहीं करेंगे, तो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहां पर शी शुड बाय दैट ड्रेस, दैट शी शुड बाय दैट। शी विश्ड टू मी, उसने मुझसे कहा, विश किया, इच्छा दिखाई मुझे, शी शुड बाय दैट ड्रेस। एक और एग्जांपल देते हैं। ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब यहां पर सेड टू कहा गया और उसने मुझे प्रपोज किया, राइट। सो ही प्रपोज टू मी। अब इस लेट की जगह हम क्या यूज करेंगे? दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे, से विश टू मी दैट शी शुड, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे इसकी जगह? दैट। ये थोड़ा सा मिस्टेक रहा हमारा कि ही विश टू मी दैट शी शुड बाय दैट ड्रेस, राइट। कभी भी जब हम इसमें यूज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है मिस्टर लेट के बाद, हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लेना है। क्यों लेना है सब्जेक्टिव केस? इसलिए लेना है क्योंकि जब भी कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका हमें सब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लेट खत्म कर दिया हमने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो मी है वो आई है आगे, ठीक है। और आई को जब इससे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आई का मतलब सी आ जाता है, तो दैट इज राइट, सी शुड। तो यहां पर मैंने प्रपोज लिखा, कहने का मतलब ये था कि जो प्रपोज टू भी जरूर लिखेंगे इस टाइप ऑफ सेंटेंस में। विश और प्रपोज में टू भी ऐड करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले करवाया था कि लेट वाले जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वी शुड ऑलवेज चेंज लेट इनटू शुड। हमें लेट को शुड में यूज करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट से पहले टू लेट का भी यूज कर देते हैं, लेकिन जनरली हम इसमें लेट को शुड में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। 6, इफ गिवन इज एम्पैथेटिक, अवॉइड प्लीज, ये भी लिख देते हैं, अवॉइड प्लीज, डियर सर या मैडम, उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, हटा ही देंगे उसको, अवॉइड कर देंगे उसको यूज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्लीज वगैरह कोई वर्ड दे रखा हो, डियर सर मैडम दे रखा हो, तो डियर सर और मैडम की जगह हम एक वर्ड यूज कर लेंगे। तो ही सेड टू को बदलेंगे रेस्पेक्टफुली, ही सेड रेस्पेक्टफुली। सो यहां पर सेड टू को रेस्पेक्टफुली का यूज करते हैं और प्लीज को रिमूव कर देंगे। इसके जगह जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे तो हम रिक्वेस्टेड का यूज कर लेंगे। जैसे रिक्वेस्टेड आ जाएगा तो ये प्लीज ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल में लिखवा देता हूं आगे। 6 में अगर एम्पैथेटिक सेंटेंस गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है तो हम उसको भी हटा देंगे। टू अवॉइड यूज ऑफ एम्पैथेटिक वर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो एग्जाम्पल ग्रुप में, ही सेड टू मी डू रीड इंग्लिश
न्यूज़पेपर, राइट। अब ये देखोगे आप, डू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, तो डू इज टू मेक द सेंटेंस एम्पैथाइज्ड। तो सेंटेंस को एम्पैथेटिक बनाने के लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बिगिनिंग में कर देते हैं। अब ये नहीं है कि ये इंटेरोगेटिव बन गया, डू रीड इंग्लिश, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये एम्पैथेटिक सेंटेंस है इंटेरोगेटिव की फॉर्म में। और यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, याद रखना इस चीज़ को। तो जब इसको चेंज करेंगे तो डू को हटा देंगे, तो यहाँ पर रीड सजेस्ट किया गया है तो सेट टू को सजेस्टेड कर देंगे, सजेस्टेड मी। अब यहाँ पर टू का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, विदाउट लेट वाले हैं, तो टू कर देंगे, टू, फिर रीड कर देंगे, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। तो हमने ये डू को कंप्लीटली रिमूव कर दिया इन इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। आसान है सारे, इसको देखते रहो साथ साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। जो रूल है हमारे, जनरल रूल तो रहेंगे, कुछ एक्सेप्शनल रूल जो है वो उसको यूज़ करेंगे। जनरल रूल तो सेम ही है, हम जनरल रूल में क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, हम टेंस चेंज करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, कोमे को रिमूव करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। ये सब जनरल रूल हैं, उसको तो हम एज इट इज़ ही रखेंगे। बाकी जो कुछ एक्सेप्शनल रूल है उसको हम चेंज करेंगे। मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब कुछ सेंटेंस को हम चेंज करते हैं कि हम कैसे इसको चेंज करें। तो पहला जो हमने दे रखा है उसी को चेंज कर लेते हैं। ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। अब यहाँ पर प्लीज जो वर्ड है, मैंने कहा था इससे पहले वाले रूल्स में कि प्लीज वगैरह वर्ड को हम हटा देंगे। और कोई क्वेश्चन टैग भी अगर पीछे दे रखा हो, है ना, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। डू यू प्लीज ओपन द डोर, और कोमा लगा दिया मैंने, डू यू, और क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन टैग लगा दिया। तो हम क्वेश्चन टैग को भी हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते वक्त। तो इसको चेंज करते हैं फिलहाल हम। तो ही सेड टू मी, अंदर प्लीज है, तो यहां पर सेड टू का जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर टू नहीं लगेगा, सिर्फ टू मैंने 2 बार में बताया, प्रपोज और विश में। सो ही रिक्वेस्टेड मी, कोमा आ गया, कोमा की जगह हम लगा देंगे टू, क्योंकि यहां पर विदाउट लेट वाले हैं। टू ओपन द डोर, ओपन द डोर फॉर मी को बदले, इससे बदल जाएगा हिम, राइट, वेरी इजी। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा यहां पर लेते हैं, अब एक को लेते हैं, सी सैड टू मी ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। यहाँ पर मदर ने कहा या किसी ने भी कहा ओपन योर बुक, तो यहाँ पर हमें लगता है किसी को ऑर्डर दिया गया है। सो यहाँ पर लिखेंगे सेड टू को ऑर्डर। और आप आस्क का भी यूज कर सकते हो। मदर ने मुझसे कहा कि आस्क, तो आस्क भी यूज कर सकते हैं। सी आस्क्ड मी टू ओपन योर को माई बुक। आस्क मतलब पूछना या कहना, तो उसने मुझे अपनी किताब खोलने के लिए कहा। तो ये आस्क का भी यूज हम कर सकते। आस्क का जनरली हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन हम इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आस्क का यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, तीसरा जो हम इसमें अलग से लेते हैं, ही सैड टू मी हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी, कि आपको कहा गया कि चाय लो, चाय का कप लो। तो यहां पर भी ये नहीं है कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको क्या किया गया है, आपको सजेस्ट किया गया है या आपको प्रपोज किया गया है। ही प्रपोज्ड टू मी टू हैव ए कप ऑफ टी। उसने मुझे प्रपोज किया क्या करने के लिए, टू हैव ए कप ऑफ टी, चाय पीने के लिए उसने मुझे प्रपोज किया। सो नेक्स्ट, अब थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं। मदर सेड टू मी, मदर के माई ब्रदर
said to me, don't, या don't से लेते हैं या let से लेते हैं, don't touch my notebooks, don't touch my notebooks। और ये किसने कहा? माई ब्रदर सेड टू मी डोंट टच माई नोटबुक्स। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है? यहां पर ऑर्डर कहा गया है डोंट टच, या फॉरबेड कहा है, मना किया है किसी चीज को टच करने के लिए। तो हम दोनों तरीके से यूज करेंगे। तो पहले सेड टू को बदलते हैं डायरेक्ट में, अगर सिंपल से बदलेंगे तो माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी। अब ऑर्डर्ड मी हमने इस सेड टू को बदल दिया ऑर्डर्ड में, और किसको ऑर्डर किया? मुझे ऑर्डर किया। क्या करने के लिए? टच करने के लिए। ऑर्डर मी, तो नॉट, इसको सब हम जब हम इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट। अब इस डू नॉट को आगे लाएं और टू के बाद तो नॉट पहले आ जाएगा, नॉट आ गया, फिर हम लगाएंगे कंजक्शन। क्या लगाएंगे? कंजक्शन। नॉट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे कंजक्शन, नॉट टू। अब टच का टच, माई को बदलेंगे आई माई हिज नोटबुक्स। वेरी क्लियर। सिर्फ क्या किया मैंने कि यहां पर ऑर्डर रख दिया, मी कर दिया। अब ये जो कंजक्शन लगने से पहले नोट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है। डू नॉट, तो नॉट को आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे टू, फिर एज इट इज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई होती है। टू टच, इस प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि फॉरबेड का यूज कर देंगे इसकी जगह। माई ब्रदर फॉरबेड, क्योंकि ये फॉरबेड ही इसलिए आएगा क्योंकि सेड पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो माई ब्रदर फॉरबेड मी टू टच। अब आप देख रहे होगे कि नोट मैंने रिप्लेस कर दिया, हटाई दिया, टू टच हिज नोटबुक्स। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर तो नोट लिखा हुआ था, यहां पर नोट है नहीं, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में ही नेगेटिव सेंस लेके चलता है, नेगेटिव सेंस लेकर चलता है। फॉरबेड ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस लेके चलता है अपने आप। तो दोबारा से नोट लगाने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। और नोट तभी लगता है जब आप पहले कोई रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करेंगे, उसमें विदाउट नेगेटिव सेंस वाले वर्ड का यूज करेंगे, तब तो नोट का यूज करेंगे। और फॉरबेड या प्रिवेंटेड यूज कर दिया हमने, प्रिवेंटेड यूज कर दिया हमने, तब हमें कभी भी नोट का यूज नहीं करना। सेंटेंस नेगेटिव है तब भी, और ये नेगेटिव सेंटेंस टाइप में ही लगते हैं फॉरबेड और प्रिवेंटेड। तो आपने देखा प्रिवेंटेड और फॉरबेड लगा देते हैं तो नोट का यूज नहीं। फॉरबेड का मतलब मना करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसके नीचे ही कर लेते हैं, लेट वाले। आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, रेड पेन से कर लेते हैं, वो और अच्छा दिखाई देगा। ही सेड टू मी let us watch the new movie, let us watch the new movie in theater whatever। so यहां पर let का यूज किया गया है, सजेस्ट किया है, किसी को प्रपोज किया है, सजेस्ट किया है। और यहां पर सजेस्टेड भी यूज कर लेंगे तो कैसे करेंगे? तो ही सजेस्टेड के साथ डायरेक्ट मी लगेंगे, टू नहीं लगाएंगे, मैंने दो में बताया है टू लगाना। ही सजेस्टेड मी दैट। अब इसमें दैट क्यों लगाया? क्योंकि ये लेट से स्टार्ट है, इसलिए हमने इसमें कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे। ही सजेस्टेड मी दैट। अब इसको बदलेंगे, ये फर्स्ट वी आ गया, वी अवर अस, और इसको बदल देंगे ही से। अब ये यहां पर थर्ड पर्सन है और ये यहां पर मैं हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। इन दोनों को मिला देंगे तो हम बन जाएंगे। तो वी का यूज कर सकते हैं और दे का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही सजेस्टेड मी दैट वी और दे, वी शुड। अब लेट की जगह रिप्लेस करके हमने क्या वर्ड यूज करेंगे? शुड। वी शुड वॉच
द न्यू मूवी। सही है, हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ क्या किया, इस सेट टू को हमने सजेस्टेड मी कर दिया, सजेस्ट किया उसने मुझे, क्या सजेस्ट किया कि हमें वी को बदल देंगे इससे, क्योंकि दोनों मिलकर जब हम दो बनेंगे तो हम बनेंगे, हम दोनों। अगर कोई और ये पर्सन है, कोई और किसी को कहा तो दे यूज करेंगे, अदरवाइज हमने इसमें दोनों यूज कर दिए तो वी यूज हो गया। वी लेट को हम रिप्लेस करेंगे शुड के साथ, लेट को रिप्लेस करेंगे शुड के साथ, जो पहले हमने रूल में बताया था। वी शुड वॉच का वॉच, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो शुड वॉच द न्यू मूवी। अब सोच रहे टेंस पास्ट में कैसे बन गया, पास्ट में सजेस्टेड लगाते ही ये टेंस पास्ट में चला गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। बड़े आसान है, अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो कोई विशेष बात नहीं है। एक एक चीज़ को आप उसमें ध्यान से पढ़ते जाएं, समझते जाएं। My mother said, do not speak lie, स्पीक लाई। अब आप देखो यहां पर ध्यान से, डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो। तो माई मदर ने किसको कहा, मुझे कहा या किसी और को कहा। सो माई मदर सैड को सैड रखेंगे या सैड को डू नॉट, तो ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट तो नेगेटिव आता है, या फॉरबैड का यूज कर सकते हैं, या ऑर्डर कर सकते हैं। माई मदर ऑर्डर्ड मी। अब यहां पर मी इसलिए लिखा क्योंकि आप मदर ने किसको कहा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा टिक माई डियर सन कर देता हूं, माई डियर सन, ठीक है। अब थोड़ा सा और बदल गया, तो माई मदर ऑर्डर्ड मी। अब नोट को आगे, नोट टू स्पीक लाई, नोट टू स्पीक लाई। अब यहां पर ऑर्डर की जगह हम लिख देंगे फॉरबैड मी टू स्पीक लाई। तो ऐसे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। कोई और आपको ध्यान में आ रहा हो कोई सेंटेंस टाइप, तो उसको भी हम बना देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया, सिट डाउन, the captain said to the soldiers, lay down your weapons, lay down your weapons। उन्होंने कहा कि सब अपने बंदूक या हथियारों को जमीन पर रख दो, ले डाउन योर weapons। कैप्टन ने कहा या कमांडर ने कहा, कमांडर कर देते हैं, द कमांडर सेड टू द सोल्जर। तो द कमांडर यहां पर कमांड किया गया है, किसी भी सेना के लिए जो सैनिक है उनको कमांड किया गया है, उसको आदेश दिया गया है। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर टू ले डाउन योर को बदल देंगे इससे, देयर weapons, राइट, टू ले डाउन योर weapons। सो यहां पर अब मैं ये को लिख देता हूं थोड़ा सा, ये नेक्स्ट जो भी है, द टीचर को नहीं करते, द मैन
said to me, don't smoke here. Smoke here. अच्छा, अब ये किसी चीज़ के लिए मनाही करना, मना किया गया किसी चीज़ को करने के लिए, तो उस जगह हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं सेड टू का मतलब ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्मोक हियर, राइट। दूसरा मैंने बताया था प्रोहिबिटेड करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। द मैन प्रोहिबिटेड का मतलब है मना करना। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? मना करना या निषेध करना, किसी काम के लिए निषेध करना, मना करना कीजिए। सो बेसिकली हमने क्या कहा? प्रोहिबिटेड। मैं दोबारा लिख देता हूं, द मैन प्रोहिबिटेड मी। अब नॉट का यूज नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड मी फॉर स्मोकिंग, आप सोच रहे होगे कि टू कहाँ गया, क्योंकि टू की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे फोर। द मैन प्रोहिबिटेड मी फॉर स्मोकिंग, किसके लिए मना किया गया? के लिए मना किया गया, तो फोर का यूज करेंगे। एक कंजक्शन में जब हमने टू का यूज करते थे तो इसकी जगह हम प्रोहिबिटेड में टू का यूज की जगह फोर का यूज करेंगे। तो द मैन प्रोहिबिटेड मी फॉर स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के लिए मुझे मना किया गया। अब प्रोहिबिटेड की जगह प्रिवेंटेड कर देंगे, प्रिवेंटेड मी। अब मुझे प्रिवेंट किया गया, रोका गया। किसके लिए रोका गया? टू स्मोकिंग के लिए नहीं, फॉर स्मोकिंग के लिए। अब यहां पर तो स्मोक था, जो हमने ऑर्डर्ड में दिया नॉट टू स्मोक हियर, ये करेक्ट है, ये भी नहीं है कि गलत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड करेंगे तो प्रोहिबिट करने के लिए तो यहाँ पर स्मोक का यूज़ ना करेंगे, स्मोकिंग का यूज़ कर देंगे, और फिर स्मोकिंग से पहले फोर का यूज़ करेंगे, तो फोर स्मोकिंग। आई थिंक, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज जितनी आप करोगे, खुद करोगे, तब आप उतना ही ज़्यादा कर सकते हो। जो दो चार बच गई है, तो अब लेट अस नॉट, जैसे ये था, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू माई फादर, ये लिखते हैं। लेट अस नॉट टॉक about your son. Let us not talk about your son. मेरे फ्रेंड ने मेरे फादर से कहा let us not talk about your son. तो यहां पर my friend said to को किस में बदल देंगे? यहां पर भी सजेस्ट किया गया है let us not talk about your friend, तो यहां पर सजेस्ट किया, my friend suggested my father दैट अपने लगा, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे, दैट। अब ये अस, वी से हम वी अवर अस, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस वी ले लेंगे। अब ये कहाँ गया? वी अवर अस माई फ्रेंड्स के पास। लेकिन याद रखें, ये दोनों बात कर रहे हैं अभी, ये इसका नहीं से चेंज नहीं कर देंगे कि ही यहाँ पे लिख दिया माई फ्रेंड, खाली माई फ्रेंड है तो ही आ गया, ही शुड नॉट, ऐसा नहीं, क्योंकि इन दोनों को ये दो बात कर रहे हैं और ये लेट अस का यूज प्लूरल में हुआ है। तब हम देखेंगे ये जो है आपका थर्ड पर्सन है और माय फादर भी मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हम दे का यूज करेंगे, यहाँ पर वी का यूज नहीं करेंगे। वी का यूज कब करेंगे? जब कोई भी पर्सन हो लेकिन उसमें हम भी शामिल हों, उसमें फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो, हम भी शामिल हो, तब वी का यूज करेंगे। जब कोई थर्ड पर्सन या सेकंड और थर्ड बात कर रहे हो या थर्ड बात कर रहे हो, हम शामिल नहीं है उसमें, तो दे का यूज करेंगे रादर। So my friend suggested my father that let की जगह they should, not का not यूज करेंगे, not लगा है, they should not talk, आराम से लिखेंगे, about, अब योर आ गया।
अब योर के लिए स्पेशल हम इस चीज़ के लिए बात करें क्योंकि कोई दोनों के तो बच्चा है नहीं है, किसी एक का ही तो है, ये फादर का लड़का है, तो योवर यू योवर ही हिज अबाउट हिज फादर, यानी कि उन दोनों को उसके फादर के बेटे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सो शुड अबाउट हिज फादर। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो कभी भी लेट में नेगेटिव आए तब भी आपने शुड नॉट का यूज़ करना है। सिंपल आए विदाउट लेट वाले आए तो इस कंजक्शन के कॉमे की जगह कंजक्शन यूज़ करेंगे, वो टू का यूज़ करेंगे। लेट वाले में दैट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? कोई और भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो बाद में कर लेंगे। अब फिलहाल आप जो भी रूल्स जो मैंने लिखवाए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और जितने भी मैंने सेंटेंस टाइप करवाए हैं उसको भी ध्यान से घर पर करके देखें। कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। लेट मी नो अबाउट द प्रॉब्लम व्हेन यू फेस्ड योर प्रॉब्लम यू फ्रीली आस्क मी। सो यहाँ पर हम आस्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि इनकी जगह कि पूछा, जैसे सी सैड टू मी प्ले प्ले कर सकते हो। डू योर वर्क रेगुलरली, डू योर वर्क रेगुलरली, तो अपना काम रोज करो। तो उसने मुझे पूछ भी सकती है। तो सी सेट की जगह सी आस्क मी टू डू यू को माई वर्क रेगुलरली। सी आस्क मी, उसने मुझे पूछा, क्या चीज़ करने के लिए पूछा? टू डू माई वर्क प्रॉपरली, टू डू माई वर्क रेगुलरली। तो आस्क का भी यूज़ कर सकते। जब आपको पता नहीं कि क्या लगाएं, सेड मतलब कमांड लगाएं या रिक्वेस्ट लगाएं या ऑर्डर लगाएं या सजेशन लगाएं, क्या लगाएं, जब आपको कुछ नहीं पता कि क्या लगाएं तो आप सीधा आस्क या आस्क्ड यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू यूज़ इंपेरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, विश वगैरह वगैरह, तो आप सीधा आस्क का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि अंदर वाला सेंटेंस क्या पूछ रहा है, किस टाइप का नेचर है, तभी आप यूज़ करें। जैसे प्लीज़, जब कभी भी प्लीज़ लग जाए इसका मतलब है रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लीज़ डू योर एक्सरसाइज रेगुलरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग today's topic, please let me know about your issues and problems. Thank you so much for this.